Hello friends, welcome to Unacademy GATE MEPIXE. This is your educator Aprup Rao and this is Concepts in Minutes video, and in this video we are going to talk about pure bending. Exactly what do we mean by pure bending? What happens in case of pure bending? Why do we consider this condition? What is the significance? What is the importance of pure bending? And it is a very important question which comes in your written exams as well as in interviews. In fact, beta, I remember once in one of my interviews I was asked to explain the concept of pure bending. प्योर बेंडिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपके रिटन एग्जाम में तो आएगा ही, रिटन में तो आपको पूछा ही जाता है प्योर बेंडिंग क्या है। साथ में अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे भी ये टर्म काफी पूछा जाता है कि प्योर बेंडिंग क्या है, एक्सप्लेन करो कि प्योर बेंडिंग क्या है, क्यों हम इस प्योर बेंडिंग कंडीशन को कंसिडर करते हैं। तो बेटा आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अप्रूप राव, ऑल इंडिया रैंक 320 in GATE Mechanical, MTech from IIT Kharagpur, and my specialization was Mechanical Systems Design. In my final year, I was recruited by Mahindra and I worked at their R&D center. I was a part of some really cool projects of cars such as XUV, KUV, TUV, and I worked in the field of design of cars for 2 years. But then I decided to quit my job and I started teaching. So I've been teaching for more than 6 years now. And I teach subjects related to design, SOM, MD, EM and TOM. Now let's talk about pure bending. तो बेटा सबसे पहले तो प्योर बेंडिंग कंडीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की कि क्यों हम प्योर बेंडिंग की कंडीशन कंसिडर करते हैं, ये पिक्चर में आता ही क्यों है। ओके, तो बेटा प्योर बेंडिंग का मतलब आप आसानी से समझ गए होंगे। जब भी मान लो आप कोई एक बीम कंसिडर करते हैं, लेट्स से यू हैव अ बीम, ओके, लेट्स से आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है मान लो, एंड लेट्स से दिस कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसवर्स लोड। ओके, दिस इज नोन एज अ ट्रांसवर्स लोड। तो आप इस बीम के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे दो चीजें डेवलप होंगी। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, if I cut this cantilever beam from this point and if I draw the free body diagram, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम क्या, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, आई विल गेट अ फोर्स एंड आई विल ऑल्सो गेट अ मोमेंट, राइट। ये जो फोर्स है दिस इज नोन एज शियर फोर्स और ये जो मोमेंट है दिस इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। तो आप किसी भी बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर कंसिडर करते हैं फॉर एनालिसिस, you will see that it is subjected to a shear force as well as a bending moment. Now what is pure bending? So the word itself is self-explanatory. This meaning of the pure bending is self-explanatory. Pure bending matlab there is only bending moment, there is no shear force. Pure bending का मतलब only bending moment, no shear force. Now when will you get this condition? Understand. What is the relation between shear force and bending moment? The relation between shear force and bending moment is S equals to dm by dx. Okay, the relation between shear force and bending moment is S equals to dm by dx. Now I am saying that it is pure bending, means there is no shear force, means this is zero, right? मैं कह रहा हूं कि प्योर बेंडिंग मतलब कि shear force जीरो है, तो shear force अगर जीरो है तो dm by dx भी जीरो होगा। Now what is dm by dx? dm by dx is the slope of bending moment. dm by dx is the slope of bending moment diagram. अब bending moment diagram का slope जीरो होने का मतलब क्या है? That the bending moment is constant. So when do we get pure bending? When the bending moment from one section to another section is constant. So I hope you are clear about the concept of pure bending. Pure bending क्या है, ये चीज क्लियर है। किसी भी क्रॉस सेक्शन में, बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन में शियर फोर्स भी मिलता है और बेंडिंग मोमेंट भी मिलता है। अगर मैं प्योर बेंडिंग बोल रहा हूं मतलब कि शियर फोर्स जीरो है, और शियर फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, यानी बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो। तो बेटा प्योर बेंडिंग की कंडीशन आपको कब मिल सकती है? एक एग्जांपल के लिए हम एक बीम कंसिडर करते हैं। लेट्स से इन दिस बीम देयर इज वन कपल हियर एंड देयर इज वन कपल हियर। मान लो एक मोमेंट ऐसा लग रहा है, एक मोमेंट ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं
तो मुझे कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। यहां बेंडिंग मोमेंट विल बी कांस्टेंट, सो दिस विल बी प्योर बेंडिंग, राइट। इसी सिचुएशन को हम बोलेंगे प्योर बेंडिंग, राइट। तो बेटा मेरे हिसाब से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर बेंडिंग क्या है और ये कौन सी कंडीशन में हमें मिलता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों है। तो प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी में यूज होता है, ओके। यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी इज वन थ्योरी which is used in order to derive the bending equation। जो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने की इक्वेशन होती है, that equation is derived from different theories, जिनमें से एक थ्योरी है यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी और दूसरी थ्योरी है बेटा टिमोशेंको बीम थ्योरी। इनमें से हम जो अपने सिलेबस में पढ़ते हैं दैट इज यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी, जिससे आपको ये इक्वेशन मिलती है। आई होप यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू एम बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर। ये जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी। अब इस बीम थ्योरी में एक पर्टिकुलर अजम्पशन होता है जिस अजम्पशन के बिना बीम थ्योरी डिराइव करना इम्पॉसिबल है। व्हाट इज द अजम्पशन? ट्रांसवर्स सेक्शन which is also the cross section remains plane after bending। ये अजम्पशन आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बेटा बिल्कुल पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर काफी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ऐसे तो बहुत सारे अजम्पशन है बट ये एक ऐसा अजम्पशन है जिसके ऊपर पूरी की पूरी यूलर बर्नौली बीम थ्योरी टिकी हुई है। व्हाट इज दिस अजम्पशन? कि बीम का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो पहले तो प्लेन ही होता है, राइट। बिफोर बेंडिंग द क्रॉस सेक्शन इज प्लेन। नाउ हम अज्यूम करते हैं कि बेंड होने के बाद भी इसका क्रॉस सेक्शन प्लेन ही रहेगा। अब इसको अगर आप डायग्राम के थ्रू समझें तो मान लो दिस इज अ बीम, ठीक है। मान लो ये एक बीम है विच इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, ठीक है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? प्योर बेंडिंग। अब जब ये बीम बेंड होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। अब यहां ध्यान से देखो, आप कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन कंसीडर करो। लेट्स कंसीडर दिस क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ओके। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब ये बेंड होगा तो ये एक प्लेन ही रहेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से बेंड होगा, ठीक है। मान लो ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन जो है इट इज पी क्यू, तो जब ये बेंड होगा पी डैश क्यू डैश बन जाएगा, तो ये प्लेन ही रहेगा। ये कुछ इस तरीके से बेंड नहीं होगा, ये ऐसा बेंड नहीं होगा, ये कर्व नहीं होगा, ये प्लेन ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा इसका मैथमेटिकल मतलब क्या हुआ? इनिशियली द प्लेन वाज लाइक दिस, राइट। इनिशियली प्लेन ऐसा था और अब प्लेन बेंड होने के बाद ऐसा है। तो आप यहां देख सकते हो टॉप से लेके बॉटम तक जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो कैसे वैरी कर रहा है? लीनियरली वैरी कर रहा है, राइट। टॉप की लेंथ जो है और बॉटम की जो लेंथ है और सेंटर की जो लेंथ है वो कितनी बढ़ रही है? अगर आप वो वेरिएशन देखोगे तो आई विल गेट अ लीनियर वेरिएशन, यानी कि एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई मतलब कि सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। वाई मतलब सेंटर से डिस्टेंस। दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई अगर मैं ले लूं तो y के साथ एप्सिलॉन कैसे वेरी कर रहा है बेटा? लीनियरली वेरी कर रहा है। तो हुक्स लॉ से सिग्मा इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू y, यानी बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन हमें कैसी मिलती है? लीनियर मिलती है। तो यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी में जो लीनियर बेंडिंग स्ट्रेस निकलता है वो इसी अजम्पशन की वजह से निकलता है। अदरवाइज क्या होगा बेटा? अगर क्रॉस सेक्शन प्लेन नहीं रहा तो ये इक्वेशन आपको नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि इस अजम्पशन का प्योर बेंडिंग से क्या रिलेशन? सो अंडरस्टैंड बेटा, मान लो हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसवर्स लोड। मान लो हमारे पास ये कैंटिलीवर
Now, if it is subjected to a transverse load like this, that means every cross section will have shear force as well as bending moment. This is not pure bending. ये प्योर बेंडिंग नहीं है, यहां पे shear force भी होगा और बेंडिंग मोमेंट भी होगा. तो इस केस में अगर आप इस बीम की बेंडिंग देखें तो यहां आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी. इन दिस केस इफ आई कंसिडर एनी प्लेन, then beta after bending it will not remain plane, after bending it will become distorted. अब सवाल ये उठता है कि ये डिस्टॉर्शन हो क्यों रहा है. अगर प्योर बेंडिंग में डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है तो यहां डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है. सो अंडरस्टैंड बेटा, अंडरस्टैंड. इफ आई कंसिडर एनी वन पॉइंट, अगर मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूं एंड इफ आई सी द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट, तो मुझे कुछ ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखने को मिलेगा. देयर विल बी सम शियर स्ट्रेस, यहां पे कुछ शियर स्ट्रेस आएगा, राइट. देयर विल बी सम शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स. और इस शियर स्ट्रेस की वजह से जो प्लेन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शनल प्लेन कांस्टेंट प्लेन नहीं रह जाता, इट बिकम्स डिस्टॉर्टेड. तो ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इन शियर स्ट्रेसेस की वजह से हो रहा है. ये जो शियर फोर्स है इट इज कॉजिंग द प्लेन्स टू मूव लाइक दिस. जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करते हैं. लुक एट दिस, लुक एट दिस. इस शियर स्ट्रेस को देखो, इस शियर स्ट्रेस को देखो. तो इन शियर स्ट्रेसेस की वजह से जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे स्लाइड कर रहे हैं. तो ये अब प्लेन नहीं रह जाएंगे, अब ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा. जो क्रॉस सेक्शन पहले प्लेन था अब वो डिस्टॉर्टेड हो गया है, और डिस्टॉर्शन की वजह से अब आपको ये बेंडिंग इक्वेशन नहीं मिलेगी. सो डू यू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस अजम्पशन. हम ये अजम्पशन जो लेते हैं इसका प्योर बेंडिंग से क्या कनेक्शन है, क्या आपको क्लियर हो रहा है. Euler-Bernoulli's beam theory is based on the assumption that the transverse section remains plane after bending, and this assumption is only possible if there is pure bending. अगर प्योर बेंडिंग नहीं है, अगर प्योर बेंडिंग नहीं है, यहां पे मैं आप लिख देता हूं दिस इज प्योर बेंडिंग. तो प्योर बेंडिंग में इट इज वैलिड, ओके, बट दिस इज नॉट प्योर बेंडिंग. ये प्योर बेंडिंग नहीं है. दिस इज नॉट प्योर बेंडिंग, दिस इज द जनरल बेंडिंग. ये जनरल बेंडिंग है. जनरली बेंडिंग ऐसी ही होती है, शियर फोर्स भी होता है, बेंडिंग मोमेंट भी होता है, बेंडिंग मोमेंट चेंज होता है, बट प्योर बेंडिंग इज जस्ट एन अजम्पशन. ओके, अब सवाल ये उठता है कि हम जो इक्वेशन यूज करते हैं क्या वो सिर्फ इसी केस के लिए वैलिड है, तो नहीं. हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो इस केस को कंसिडर करके डिराइव की है, लेकिन इस इक्वेशन को आप किसी भी कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट आप इस कंडीशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. आपको जो आंसर मिलेगा इट विल बी फेयरली एक्यूरेट. आपको जो आंसर मिलेगा वो फेयरली एक्यूरेट रहेगा. उस आंसर में बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा. प्रैक्टिकली ये चीज प्रूव हो चुकी है. दैट्स व्हाई यूलर-बर्नौलीज बीम थ्योरी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. इसको हम हर लोडिंग कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं. प्योर बेंडिंग अगर ना भी हो तब भी हम यूलर-बर्नौलीज बीम थ्योरी लगा सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन इसी अजम्पशन पे बेस्ड है. डेरिवेशन इस अजम्पशन के बगैर पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे डिराइव करोगे. यहां पर स्ट्रेट लाइन के केस में तो मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना आसान है, लेकिन इस केस में मैथमेटिकल इक्वेशन आप कैसे डिराइव करेंगे? क्या आपको पता है इस कर्व की इक्वेशन क्या है? नहीं पता है, तो कैसे इक्वेशन डिराइव करना पॉसिबल है? सो दैट्स व्हाई बेटा दिस अजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूलर-बर्नौलीज बीम थ्योरी. अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर देखना मत भूलना ऑन प्योर बेंडिंग. आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसका एक बार डेरिवेशन खुद से करके देखना. आप बुक में देखना, समझना और खुद से करके डेरिवेशन देखना. आपको क्लियर होगा कि ये अजम्पशन क्यों इतना ज्यादा जरूरी है. ये लीनियर रिलेशन जो है ये आसानी से हम कैसे डिराइव कर पाते हैं.
तो आई होप मैंने आपको प्योर बेंडिंग के कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस समझा दिया है। प्योर बेंडिंग क्या है ये चीज तो लोग जानते हैं, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये कहां यूज होता है, प्योर बेंडिंग अज्यूम करना क्यों जरूरी है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग। आई होप एवरीवन गॉट इट। अगर आप और ज्यादा अच्छी तरह इसको समझना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री लेक्चर्स और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इस एक वेबसाइट से। बस गो टू एनी वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर खोलो और इस वेबसाइट को ओपन कर लो। ये एक पेज है, वेब पेज है, इसको ओपन कर लो। आपको सारा का सारा फ्री लेक्चर्स और नोट्स का कंटेंट मिल जाएगा, और वो भी काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, आप सारी चीजें व्यवस्थित तौर पे देख पाओगे। और अगर आपको मेरी आगे आने वाली क्लासेस के बारे में जानना है, देन बेटा जस्ट फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल। अपना टेलीग्राम ऐप खोलिए और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। जस्ट सर्च अप्रूव 10 सर्च करके इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, और आपको मेरे आने वाली क्लासेस के लिंक्स और उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे ऑन डेली बेसिस। और अगर आप मेरे से या मेरे जैसे और भी टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया के साथ पढ़ना चाहते हैं, देन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस पे आपको ऑन टाइम क्लासेस मिलेंगी, एक फुल बैच कोर्स मिलेगा, डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। मतलब आपको कुल मिला के एक क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। इनफैक्ट क्लासरूम से भी बेटर चीजें मिलेंगी। क्लासरूम में भी अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो तो वहां आपको सिर्फ एक बैच मिलता है, हर एक बैच में टीचर्स फिक्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ मल्टीपल बैचेस हैं, मल्टीपल टीचर्स हैं। आपकी चॉइस है, आप किस बैच में पढ़ना चाहते हो, किस टीचर से पढ़ना चाहते हो, आप खुद चूज कर सकते हो। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आप मल्टीपल बैचेस में पढ़ सकते हो, मल्टीपल टीचर्स से पढ़ सकते हो। एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हैं, सब अच्छे हैं, आप सबसे पढ़ सकते हो। सो बेटा जस्ट टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1.5 साल का ले सकते हो, 2 साल का ले सकते हो। आप ये कोड यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट 10% ऑफ। इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट 10% ऑफ इंस्टेंटली, और साथ में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लगता है, तो बेटा डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अप्रूव10 फॉर टेकिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही काम रहता है, आपको पर्सनली गाइड करना, आपके स्टडी प्लान्स बनाना और मेक श्योर करना कि आप उन प्लान्स को फॉलो कर रहे हो, आपके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, आपके डेली सेशंस लेना। तो आपको अगर एक पर्सनल कोच चाहिए अपनी प्रिपरेशन को और थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए, देन यू कैन टेक अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स। ओके, अब जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स पता हैं जिनका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है, आपको अगर लगता है कि इस कॉन्सेप्ट के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझ के आप उस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझ पाएंगे, तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आगे मैं और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, एंड आई विल मेक श्योर कि उन टॉपिक्स के ऊपर कॉन्सेप्ट्स इन मिनट्स वाले वीडियोस बने। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं और ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।